Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to start with class 11 web application book. This is your cbse student handbook and we are going to start with the first chapter which involves multimedia authoring animation tools. Let's begin. Basically people, by multimedia what do we understand? Media is a way of expression. Multi means many. Multimedia authoring, multimedia, right? Animation tools. One of the ways is animations. Right. So we'll be learning about what is animation, frames and layers, motion and shape cleaning, importing AV files. AV means audio video files, publishing work in animation. Introduction. Computer animation. This is introduction, ठीक है? Basically यहाँ से we are not asked any questions, so you can chill right now. यहाँ पे basically what we are told about is that animation is a way of expressing something. Okay, how? Like it can bring the dullest of the features to life. Right. मतलब कि like कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप एनिमेट कराते हो मीन्स उसको एक्शन में लाते हो मीन्स उसको लाइफ देते हो, ठीक है? Using technology, or this is kind of very attractive component of multimedia. What is animation? It literally means to give life to, right? Now people, animation adds dimensions of time to graphics which tremendously increase potential of transmitting the desired information. आपको जो information transfer करना है, transmit करना है, it can be easily transmitted very clearly. How? By giving time to graphics. Means आप time के according आपका जो animate करने वाले objects है वो time के according movement show करती है. That's how you can give time to graphics, and also you can transmit your desired information, and this is one of the best ways to do that through time and space. Heritage of animation. Basically you can just read these highlighted portions which are the main points here. Like what did Peter Roger do? Okay, he presented a paper titled Persistence of Vision with regard to moving objects of British Royal Society. Thomas Edison research into motion pictures. He announced his kinetoscope, okay, which projected a 50 feet length film approximately 13 seconds. Winsor McCay, considered to be one of the first popular animator. Now he used rice paper to draw images which were slightly different from each other. John Bray, he used transparent celluloid, plant cell का जो celluloid होता है उसको use करके compositing multiple layers of drawings into final image, as well as use grayscales as opposed to black and white drawings. Black and white drawings के position में he used grayscales, and that's how animation came into picture in today's world. Like rotoscoping means drawing images on cells by tracing over previously recorded actions. Previously recorded जो actions है उसको trace करके आप cells के ऊपर drawing of images करते हो, image बनाते हो. That is called rotoscoping. Alice in Wonderland, Mickey Mouse, Walt Disney ने बनाया था. Mickey Mouse used storyboard to reveal the story. Also multiplane camera stand इसने यूज किया था. And introduced parallax effect. Parallax effect मतलब जब आप किसी कार से travel करते हो, okay, car या train या any sort of vehicle, the things which are closer to you appear to move faster, और जो दूर में रहते हैं they appear to move slower, right? So that is parallax effect. Also people over here हाँ storyboard we'll be learning ahead now, ठीक है, कि storyboard क्या होता है in this chapter. Now Nell Knowlton animation shifted to computers for the first time when Ken Knowlton, while working in Bell Laboratories, started developing computing techniques for producing animated movies. Was where the University of Utah earlier pioneers in computer graphics. This is all the key points. You can just go through these university names. Though इससे questions नहीं पूछे जाएंगे, आज तक मुझे भी नहीं पूछे गए थे. We next move on to types of animations. Okay, so procedural animation. What is procedural animation? It is a type of animation which is generated by writing a program that spits out position, shape, whatever seen over time. आप एक program को code करते हो, ठीक है? By coding a program वो animation generate होता है. How? You write a program, you code it, and जो भी आपका object है जिसको आप move कराना चाह रहे हो या जो scene है over time and space वो वैसे ही move करता है. Representation animation. This technique allows an object to change its shape during animation.
ठीक है। 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। इसमें आप शेप चेंज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट और मॉर्फिंग। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मतलब वो रिजिड सेगमेंट्स को कनेक्टेड रखता है, मतलब कंपोज करता है इसका, ठीक है। लाइक जो आपका स्केलेटन होता है, ह्यूमन बॉडी स्केलेटन, उसमें आपका छोटा छोटा रिबकेज से पूरा स्केलेटन बनता है, मतलब स्केलेटन का एक पार्ट बनता है, बोन से स्केलेटन बनता है। तो रिजिड ऑब्जेक्ट्स रिजिड सेगमेंट्स को कनेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट ऑब्जेक्ट एनिमेशन यूज्ड फॉर डिफॉर्मिंग एंड एनिमेटिंग deformation of objects, soft object like skin over a body or facial muscles। जो आपके facial muscles होते हैं उसके ऊपर जो skin का movement होता है या फिर उसका shape deform होता है with time, that is soft object animation। like एक mercury का drop या water का droplet अगर fall करता है तो वो किस तरह से अपना shape change करता है। next is morphing। morphing means changing of one shape into other quite different shape। एक shape से like चुड़ैल अचानक से आदमी बन गई, ठीक है, कोई इंसान का फॉर्म ले लेती है, that is morphing, a sudden change of shape which is quite different shape। then comes stochastic animation। इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट शो करता है, लाइक फायर वर्क्स में जब आप क्रैकर्स जलाते हो, ठीक है, the movement cannot be predicted by you कि वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, it can go in any direction। waterfall का जो पानी गिरता है, ठीक है, झरनों से जो पानी गिरता है, you can't predict where it will go, ठीक है। फायर का मूवमेंट, this uses stochastic processes to control groups of objects such as particle systems। particle system छोटा छोटा पार्टिकल से जो बनता है, लाइक फायर का पार्टिकल समझ सकते हो, ठीक है, उससे जो बनता है that is stochastic animation। then we have got behavioral animation। उसमें आप ऑब्जेक्ट्स या फिर एक्टर्स को सिलेक्ट करते हो, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स बनाते हो कि वो इस एनवायरनमेंट में वो कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज बिहेवियरल। आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कोई बिहेवियर असाइन कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स ऑफ फिश और फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स which are individuals behaves according to set of rules defined by the animator। Then is 2D and 3D animator। 2D and 3D animation। 2D animation में 2 dimensional like pen and paper, मैं यहाँ पे एक line draw की, this is 2D right। और 3D में मतलब like how you see everything around you, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारे साइट्स पे अपलोडेड रहेगा, लाइक बाईजूस का आप स्टडी करते हो, ठीक है, बाईजूस का मटेरियल वो 3D एनिमेशन के थ्रू आपको स्टडी करवाते हैं, ठीक है, यूजेस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन। देन वी हैव गॉट ट्रेडिशनल मेथड्स। Okay, in this we have got 2 to 3 types, for example keyframe, cell animation, rotoscoping। keyframes में क्या आता है ना, keyframe में आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करवाता है, ठीक है। इसमें एक स्टोरी बोर्ड रहता है। व्हाट इज अ स्टोरी बोर्ड? अ स्टोरी बोर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रेम्स फॉर प्रीव्यूज। फ्रेम्स क्या होता है? फ्रेम मतलब एक पिक्चर, ठीक है, एक पेज। लाइक जो एनिमेशन रहता है, आपको कोई वीडियो दिखाया जाता है, दैट इज बेसिकली पेज बाय पेज, ठीक है, पेज बाय पेज व्यू रहता है। एंड दैट पेज बाय पेज जो व्यू रहता है वो बहुत जल्दी जल्दी एक एक पेज डिसअपियर करता है, विच इम्प्लाइज दैट आपको लगता है कि वो मूव कर रहा है, एक्चुअली मूव नहीं करता है, वो ना स्पीड में पिक्चर बाय पिक्चर आपका जाते रहता है। एक पिक्चर दिखाएगा, वो मूव करेगा, सेकंड पिक्चर आ जाता है इनटू प्ले। सो दैट इज की फ्रेम्स का, ठीक है। स्टोरी बोर्ड में आपको कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स दे दिया जाएगा। उसमें आर्टिस्ट जो है, वो जो मेन आर्टिस्ट होता है, वो मेजर फ्रेम्स ड्रॉ करते हैं। मेजर फ्रेम्स मतलब दोज इन विच अ लॉट ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस। अचानक से एक एलिफेंट जा रहा है, ठीक है, देयर इज नो मेजर चेंज। उसके ऊपर एक इंसान चढ़ के बैठ जाता है, दैट्स अ मेजर चेंज, ठीक है। जो आर्टिस्ट रहते हैं ना, वो मेजर फ्रेम्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद बहुत सारे की पॉइंट्स रहते हैं एनिमेशन में, ठीक है, विच इज व्हाट इज मेंट बाय मेजर फ्रेम्स। नेक्स्ट, बाकी जो बंच ऑफ आर्टिस्ट रहते हैं वो बाकी के फ्रेम्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक बहुत वेरी टाइम एंड एफर्ट एक्सटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है। दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक। देन वी हैव गॉट सेल एनिमेशन। इसमें क्या होता है ना, ईच कैरेक्टर इज ड्रॉन ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ ओपेक पेपर। एक होता है ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर जिसके अक्रॉस आप देख सकते हैं, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, और एक होता है ओपेक। ओपेक के थ्रू आप नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट के थ्रू यू कैन समवॉट सी, ठीक है, नॉट क्लियरली बट यू कैन जस्ट फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ योर पेपर।
तो एवरी कैरेक्टर आपके ओपेक पेपर में ड्रॉ किया जाता है. देन एट द टाइम ऑफ शूटिंग एनिमेशन डिफरेंट कैरेक्टर्स आर ओवरलेड ऑन टॉप ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ इन ईच फ्रेम. इसमें बैकग्राउंड आपको स्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है. ओपेक पेपर में आप कैरेक्टर्स ड्रॉ करके उसको मूव करते रहोगे एंड एनिमेशन आपका चलते रहेगा. ये थोड़ा सा कम हेक्टिक होता है, थोड़ा कम टीडियस प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एक बार आपका बैकग्राउंड बन गया तो खाली कैरेक्टर्स मूव करना है. देन कम्स रोटास्कोपिंग. रोटास्कोपिंग में क्या होता है, आप एक मूविंग वीडियो से इमेजेस को कॉपी कर रहे हो, अपने एनिमेशन में डाल रहे हो, ठीक है. तो इसका एडवांटेज है कि यू कैन एनिमेट वेरी कॉम्प्लेक्स सीन्स दैट वुड बी हार्ड टू विजुअलाइज अदरवाइज. आप विजुअलाइज भी नहीं कर सकते उतने कॉम्प्लेक्स सीन्स को, लेकिन आप रोटास्कोपिंग से उसको अपने एनिमेशन में बेसिकली इंट्रोड्यूस कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है, आपको एग्जैक्ट वीडियो के लिए हंट करना पड़ेगा, ठीक है. सो आपको जो चाहिए एग्जैक्टली आपको सर्च करना पड़ेगा वेब पे बैठ के पूरे दिन, तो दैट्स अ डिसएडवांटेज, ठीक है. वरना दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. ऑल्सो इसमें जो एनिमेटर को जो मिल रहा है बेसिकली, वो उसको वही ऐड करना पड़ेगा अपने एनिमेशन से, अपोज टू इमेजिंग इन हिज हेड. उसके दिमाग में जो चल रहा है उसके अपोज उसको जो मिल रहा है कॉपी करने के लिए उसको वही कॉपी करना पड़ता है. तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट. नेक्स्ट इसके बाद आया हमारा कंप्यूटर एनिमेशन, ठीक है. ये थोड़ा बेटर हुआ बिकॉज कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में वर्कलोड डिवाइड हो गया बेसिकली, ठीक है. तो दिस इज काइंड ऑफ मोर कंप्यूटर असिस्टेड एंड कंप्यूटर जनरेटेड. ऑल सच टेक्निक्स रिक्वायर अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द लेवल ऑफ कंट्रोल एनिमेटर हैज ओवर इट्स फाइनल डिटेल्स. क्योंकि इसमें मैक्सिमम काम कंप्यूटर करता है, तो इसलिए जो एनिमेटर का कंट्रोल था, जो एनिमेटर अपने से ड्रॉ करता है ना, उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है अपने एनिमेशन पे, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर भी बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा होता है. ब्रॉडली कंप्यूटर एनिमेशन 3 काइंड्स का होता है, ठीक है. 3 कैटेगरीज है इसका. की फ्रेमिंग, इसमें जो एनिमेटर होता है वो क्रिटिकल या की पोजीशंस फॉर द ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर देता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है. कंप्यूटर उसके बाद बाकी का, जैसे की फ्रेम्स था ना जिसमें ह्यूमंस मेजर की फ्रेम्स आर्टिस्ट ड्रॉ कर देते थे, इसमें वैसे ही एनिमेटर ड्रॉ करेगा, स्पेसिफाई करेगा जो मेजर की फ्रेम्स होगा, लेकिन जो बाकी के फ्रेम्स होंगे बीच में वो कंप्यूटर खुद ही फिल कर देगा, ठीक है. हाउ smoothly interpolating between these positions. उसके बाद एक टॉय स्टोरी है. दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन अ टाइम, ठीक है. टॉय स्टोरी एनिमेशन मूवी, ठीक है, वॉज डिजाइन्ड बाय की फ्रेम एनिमेशन. You can just remember it as this can be asked in your exams. Now इसमें क्या होता है ना, इसमें एक कैरेक्टर का as many as 700 कंट्रोल्स था, ठीक है. उसमें आपको इसमें आपका ना एनिमेटर है, उसको भी एक वेल थॉट प्लान होना चाहिए उसके पास पहले से, देन ही कैन thoroughly go through this. Continued popularity of keyframing is a function of degree of control that it allows the animator to exercise over the subtle details of the motion. Then comes motion capture. इसमें क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक या विजन बेस्ड सेंसर्स यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड द एक्शंस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन. इसमें बेसिकली आप किसी एथलीट है या फिर कोई zebra है which is running or which is performing any kind of action, उसके बॉडी में, उसके आर्म्स में, टोज में, लेग्स में, थाइस, फेस, ठीक है, मैग्नेटिक या फिर विजन बेस्ड सेंसर्स लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका जो एक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है दैट कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है. दिस इज वेरी यूजफुल. फिर कंप्यूटर क्या करेगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू एनेबल करेगा किस चीज में, वो अपना जो एथलीट्स का जो स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स है, ठीक है, वो सबको वो रिकॉर्ड कर लेगा और अपने एनिमेशन में वो इजीली यूज कर पाएगा, ठीक है. सो रिलेटिवली इजी होता है ये काफी ज्यादा, लेकिन थोड़ा सीरियस डिस्क्रिपेंसीज आ सकता है बिटवीन द शेप्स और डायमेंशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ग्राफिकल कैरेक्टर, एंड दिस विल लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन. वो एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है sometimes, but this is kind of very useful. Then we have got stimulation. Stimulation में क्या होता है ना कि ये आपका लॉज ऑफ फिजिक्स यूज करता है, बेसिकली यूजेस लॉज ऑफ फिजिक्स टू जनरेट. लाइक एक एप्पल अगर एक ट्री से ब्रेक करता है तो इट विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो नीचे ही गिरेगा, वो कभी ऊपर नहीं जा सकता. जैसा फिजिक्स जनरेट करेगा लॉज, जैसा फिजिक्स जनरेट करता है लॉज, एग्जैक्ट वो इसको फॉलो करता है, एंड आपका जो मोशन ऑफ फिगर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स है उसको गवर्न करेगा. वर्चुअल ह्यूमंस आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी पार्ट्स.
जो वर्चुअल ह्यूमंस होते हैं उसको बॉडी पार्ट्स, रिजिड बॉडी पार्ट्स का एक कनेक्शन से ये शो करता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकली प्लॉजिबल होता है ये, ठीक है, मतलब बहुत सही रहता है ये। अप्रोक्सीमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडीज, जो वो मॉडल बनाता है वो बहुत सही रहता है। विथ मोर रिसर्च एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल्स एंड सिमुलेशन आर बिकमिंग इंक्रीजिंग लाइफ लाइक। तो अभी इसका प्रोग्रेस भी बहुत हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस कर रहा है फिजिकल रियलिज्म के साथ, ठीक है। लाइक की फ्रेमिंग या मोशन कैप्चर से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पीड अप होता है इसमें, या फिर स्लो डाउन भी हो सकता है। प्लेबैक कैन स्पॉइल द नेचुरलनेस ऑफ मोशन। इसमें थोड़ा बहुत स्लो या स्पीड होने की वजह से, क्योंकि एग्जैक्ट फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स अप्लाई कर रहा है, तो मोशन का नेचुरलनेस थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन रियल टाइम स्टिमुलेशन बहुत हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम जो फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे थे, या फिर वैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, वी यूज टू सर्च फॉर द स्टिमुलेशंस अवेलेबल ऑन द वेब, ठीक है। उससे क्या होगा ना, यू कैन यूज देम टू अंडरस्टैंड अबाउट दोज इंस्ट्रूमेंट्स, और वट एवर योर फिजिक्स का जो भी टॉपिक है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड देम वेरी प्रॉपरली, यू कैन मूव देम एंड यू कैन प्ले लाइक अ गेम, ठीक है, विद देम। सेकेंडली, जो रियल टाइम स्टिमुलेशन होता है वो हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है पर्सन को, सो दैट दे कैन मैन्यूर मतलब कि मूवमेंट विद स्किल, ठीक है, स्किलफुली मूव कर सकता है, ठीक है, स्टिमुलेटेड कैरेक्टर को। लेकिन इसका जो की फ्रेमिंग या मोशन सिलेक्ट है, उसके कॉन्ट्रास्ट में इसका मॉडिफाइड मोशंस रहता है, फॉर्म अ प्री कंप्यूटेड लाइब्रेरी ऑफ मोशंस। इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है, क्या कि ये सफर्स फ्रॉम इज दैट एक्सपर्टीज एंड टाइम रिक्वायर्ड टू हैंडक्राफ्ट द appropriate कंट्रोल सिस्टम। इसके लिए आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, ठीक है, और जो टाइम रिक्वायर्ड है उसका अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम के लिए। इस वीडियो के लिए इतने ही। लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। थैंक यू। Okay, we'll be trying to covering it in the shortest possible time, so stay tuned and subscribe to our channel. Please like if it helped you. Thank you.